everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to the fourth lecture of the revision series. And in the previous class we had solved some numericals based on the concept of combination of resistances. Today in this lecture we will discuss about the Joules law of heating and then we will discuss about the electrical power. So let's get started. So students, आमे जानिचे जे जत्ते बेले गोटे वायर रे किछि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुए देन सम हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन इट ताको हमें कहूचे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग the heat energy produced in the wire is directly proportional to the square of the current flowing through it, and it is directly proportional to the resistance of the wire and directly proportional to the time for which the current flows in the wire. So combine कला पर हमें लास्ट फॉर्मूला हमें कौन पाइबा H इक्वल टू I स्क्वायर RT. ता माने जदि गोटे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस R एवं से कंडक्टर रे T टाइम पाई I अमाउंट रो करंट फ्लो होची देन केते अमाउंट रो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हबो फॉर्मूला होची H इक्वल टू I स्क्वायर RT. And remember that this I means current is in ampere, the resistance R is in ohm and the time is in second. तो जदि करंट को हमें मेजर करूचे एम्पियर रे, रेजिस्टेंस को मेजर करूचे ओम रे और टाइम को मेजर करूचे सेकंड रे, देन हीट एनर्जी को हम एक्सप्रेस करिबा इन टर्म्स ऑफ जूल. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट विल कम टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क. आमे जानिचे जे आमे जो सर्किट रे गोटे बैटरी यूज करूचे से बैटरी रा काम कोन गोटे करंट को गोटे कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट पाई आमे गोटे बैटरी हेल्प नउचे एंड दैट बैटरी मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. सो सर्किट रे कंटीन्यूअसली करंट फ्लो करबा पाई बैटरी को किछि अमाउंट रो वर्क करे को पड़े, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल वर्क. सो से इलेक्ट्रिकल वर्क रो फार्मूला कोन? देयर आर थ्री फार्मूलाज. द फर्स्ट वन इज VIT, द सेकंड वन इज V square by R into T, the third one is I square RT. So if you remember only one formula then you can also derive the other two formulas. So W है कहते VIT माने voltage into current into time. So we know that from the Ohm's law we know that I is equal to V by R. So a formula रे जदि मो I place रे V by R put करिवि then I will get V square into T by R. Similarly, we know that V equal to IR. So in place of V, if I put IR, then I will get this formula I square RT. Is that clear? तमाने heat energy होगी I square RT and the electrical energy or electrical work done is also I square RT. Next we'll discuss about the electric power. So electric power meaning कौन ना the electrical work done per unit time. बा मु कहि परिबी power P equal to W by T. So W रो तीनटा फार्मूला अछि VIT, V square by R into T. The third one is I square RT. So जदि मु वर्क को टाइम रे डिवाइड करिबी I will get power. So VIT by T, so power is VI. Similarly V square T by R divided by T, you will get V square by R, or I square RT by T, you will get I square R. ता माने जेमती हमें वर्क रो तीनटा फार्मूला पाइले, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर रो हमें तीनटा फार्मूला पाइबा. गोटे होची VI माने वोल्टेज इनटू करंट, द सेकंड वन इज V square by R and the third one is I square into R. Now the SI unit of electric power is what? Okay, SI unit of voltage is volt, the SI unit of current is ampere, SI unit of charge is coulomb. Similarly the SI unit of power, electric power is watt. So how can we define one watt? So देखो एठी power केते power होची work by time. So work को हमें express करिबा in terms of joule. SI unit रे work को हमें express करू in terms of joule and time is expressed in terms of second. So joule per second is equal to watt. तुम लिखि परिबे एठी जे 1 watt is equal to 1 joule by 1 second. ता माने जदि गोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड रे 1 जूल अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम करूची देन से अप्लायंस रो पावर होची 1 वाट.
So 1 watt equal to how much? 1 joule by 1 second. किंबा जदि मु VI फॉर्मूला यूज करिबी देन V को मु लिखिबी 1 वोल्ट, I को लिखिबी 1 एम्पियर. So 1 volt into 1 ampere is also equal to 1 watt. So remember that 1 watt is equal to 1 joule by 1 second or 1 volt into 1 ampere. And there are some smaller or larger units of power, like जदि मु कहबी 1 MW. MW means the milliwatt. So 1 milliwatt केते आसीबो 10 to the power minus 3 watt. And 1 horsepower HP means horsepower. So 1 horsepower is equal to 746 watt. Okay, so this is the smaller unit of power and this is the larger unit of power. So the next important topic is the power rating. So this is very important topic because many students they make mistakes in this topic. So try to understand what is the meaning of power rating clearly. So तमे जते बळे कोनोसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किनुच फ्रॉम द शॉप लाइक टीवी हो किबा फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, एवरी अप्लायंस हैज सम पावर रेटिंग. रिमेंबर दैट इंडिया रे डोमेस्टिक यूज पाई तमे हमें घरे यूज जो करूचे इलेक्ट्रिसिटी वी आर सप्लाइड 220 वोल्ट. आम घरे हमें जो वोल्टेज पाउचे द वोल्टेज इज 220 वोल्ट. एंड दैट्स व्हाई all the appliances, all the electrical appliances, they are constructed to work or to operate at 220 volt. आम घरे जो फैन अच्छी, जो फ्रिज अच्छी, जो इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छी, जो ग्राइंडर अच्छी, all these appliances, all the appliances, they are constructed, they are made to operate or to work at 220 volt. जदि हमें से appliances को 220 volt to कम अमाउंट रो वोल्टेज दबा देन दे कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली. से माने वर्क करिवे बट ताकर एफिशिएंसी कमी जीवो. तमे देखिथिबो जदि तम घरे वोल्टेज कमी जाए देन कोन फैनटा धीरे धीरे घुरिबो, बट जदि वोल्टेज ठीक थिबो देन फैनटा माने जोरे घुरिबो. सेमती जदि घरे वोल्टेज कमी जाए देन कोन हबो जदि हमर लाइट लागिची से लाइट रो ब्राइटनेस टा कमी जीवो. किंतु जदि वोल्टेज टा 220 वोल्ट है देन ब्राइटनेस ठीक रहिबो. तार कारण कोन ना जेहेतु इंडिया रे 220 वोल्ट रो सप्लाई दिया होउची फॉर डोमेस्टिक यूज माने घरोई यूज पाई तने सब अप्लायंसेस से टीवी हो किबा फ्रिज हो किबा वॉशिंग मशीन हो जहां भी हो किबा इलेक्ट्रिक बल्ब हो ऑल द डिवाइसेस दे आर कंस्ट्रक्टेड टू वर्क परफेक्टली एट 220 वोल्ट. ता माने जदी हमें इंडिकेटेड वोल्टेज रु अधिक दबा डैमेज हे जीवो डिवाइस, जदि हमें इंडिकेटेड वोल्टेज रु कम दबा देन कोन हबो तार एफिशिएंसी कमी जीवो. जदि तमे देखिथिबो सपोज जदि वोल्टेज माने सडनली बढ़ी जाए देन कोन हुए बेले बेले टीवी खराब हे जाए किबा लाइट फ्यूज हे जाए. तार कारण कोन ना जेति कि वोल्टेज रे सेटा ऑपरेट करबा कथा जदि हमें अधिक वोल्टेज दे दोचे बाय सम मिस्टेक जदि अधिक वोल्टेज आसी जाउची देन कोन हबो द बल्ब और द अप्लायंसेस इट विल बी डैमेज्ड. अब जदि कम वोल्टेज रहिला देन कोन हबो ना से जेति कि एफिशिएंसी रे काम करिबा कथा सेति कि एफिशिएंसी रे से काम करि परिबो नाही. सो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रो तार जो थाय कवर से कवर ऊपर मेंशन थाय व्हाट इज द पावर रेटिंग. तो पावर रेटिंग रो मीनिंग कोन ना जदि हमें से अप्लायंस को तार मार्क्ड वोल्टेज, तो मार्क्ड वोल्टेज माने कोन मार्क्ड वोल्टेज रो मीनिंग कोन ना से अप्लायंस टा जेति के वोल्टेज रे ऑपरेट करिया पई तयारी कराइछि. आमे जानि जे इंडिया रे मार्क्ड वोल्टेज केते 220 वोल्ट. ठीक अछि. तो जदि गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रे मेंशन हेछि जे तार पावर होछि 9 वाट. ठीक अछि. सपोज गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब आमे किनले आमे कोन देखले ना से बल्ब रो पावर केते लिखा हेछि 9 वाट. तार मीनिंग कोन जदि मु से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट रे कनेक्ट करिवि देन इट विल कंज्यूम 9 वाट ऑफ पावर. तो 9 वाट को मैं लिखि परिबी 9 जूल पर सेकंड. 9 जूल पर सेकंड कहीं कि जूल पर सेकंड होची वाट. तो 1 वाट केते 1 जूल पर 1 सेकंड. ता माने 9 वाट केते आसीबो 9 जूल पर सेकंड. तार अर्थ कोन जदि गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रो पावर 9 वाट मेंशन हेची ता माने कोन जदि मु से बल्ब को 220 वोल्ट रे कनेक्ट करिवि देन से इलेक्ट्रिक बल्ब टा प्रत्येक सेकंड रे
प्रत्येक सेकेंड रे 9 जूल अमाउंट रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करिवो बा खर्च करिवो काहेकि ना इलेक्ट्रिक बल्ब जलिया पई वी नीड इलेक्ट्रिक एनर्जी तो से बल्ब टा केते एनर्जी कंज्यूम करिवो 9 जूल पर सेकेंड प्रत्येक सेकेंड रे 9 जूल अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम करिवो ता माने पावर रेटिंग रे कोन लिखा थाए पावर लिखा थाए आ वोल्टेज लिखा थाए ता माने केते वोल्ट रे हमें ताकू यूज कले से केते पावर कंज्यूम करिवो ठीक अछि तो मन रखिता पावर रेटिंग माने द वैल्यू ऑफ पावर एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज गिवन ठीक अछि ता माने p रो वैल्यू गिवन थिबो आ v रो वैल्यू गिवन थिबो तो एबे जदि पावर आ वोल्टेज रो वैल्यू गिवन अछि देन से पावर रेटिंग रो डाटा रू आमे कोन इंफॉर्मेशन पाई परिबा द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गैदर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस सपोज आमे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब किनुचे किबा आमे गोटे इलेक्ट्रिक सपोज गोटे ग्राइंडर किनुचे किबा गोटे कूलर किनुचे गोटे फैन किनुचे सो से डिवाइस रो रेजिस्टेंस केते वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द पावर रेटिंग फॉर्मूला कोन आमे जानिचे पावर केते p equal to v square by r is that clear p केते v square by r तो पावर रेटिंग रे p रे वैल्यू गिवन थिबो और v रे वैल्यू गिवन थिबो we have to calculate the resistance of the device or appliance तो फॉर्मूला कोन आसीबो r equal to v square by p तो जेति की वैल्यू लिखा हितिबो पावर रेटिंग रे से वोल्टेज रे वैल्यू को मु लिखिबे एठी और जहाँ थी पावर रेटिंग रो पावर ताकू मुझे लिखी आई विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस सो रिमेंबर दैट फ्रॉम द पावर रेटिंग वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला r equal to v square by p what is the second information that I can get from the power rating current through the device जदि पावर रेटिंग रे वैल्यू गिवन अछि देन आमे कोन करि परिबा आमे कैलकुलेट करि परिबा जे से डिवाइस रे केते अमाउंट रो करंट दरकार बाय यूजिंग दिस फार्मूला I इक्वल टू p by v आमे जानिचे पावर केते p इक्वल टू vi ठीक अछि तो जदी हमकु करंट कैलकुलेट करिवार अछि देन वी कैन यूज दिस फार्मूला p इक्वल टू vi मींस I केते हबो I हेजबो p by v पावर बाय द वोल्टेज you will get the amount of current that is required for by the device kintu when an electric appliance is connected across the indicated voltage it consumes the indicated power ta mane jodi gote device ro packet re likha hichi 20 watt 240 volt let us say 20 watt 240 volt ta mane kon jodi mu se device ku 240 volt voltage debi then only it will consume 20 watt of power is that clear तो जदी गोटे डिवाइस रो पैकेट रे बता कवर रे पावर रेटिंग मेंशन हिचे केते ना 20 वाट 240 वोल्ट 20 वाट 240 वोल्ट माने मार्क्ड पावर बा इंडिकेटेड पावर केते लिखा हिची 20 वाट और इंडिकेटेड वोल्टेज केते लिखा हिची 240 वोल्ट तार अर्थ कोन जदी मु से अप्लायंस को बा जदी मु से डिवाइस को 240 वोल्ट सप्लाई करिबी 240 वोल्ट रो वोल्टेज सप्लाई करिबी देन दैट अप्लायंस विल कंज्यूम 20 वाट ऑफ पावर बा 20 जूल पर सेकंड से कंज्यूम करिवो इज दैट क्लियर किंतु when the operating voltage is reduced जदी मु कोन करिबी ना से डिवाइस को 240 वोल्ट वोल्टेज न देकी सपोज ताको मु 200 वोल्ट किबा 120 वोल्ट किबा 150 वोल्ट सप्लाई करिबी this is not the indicated voltage is 240 volt ta mane I have to supply 240 volt voltage to that device so that it will give you 20 watt of power किंतु जदी ताकु मु indicated voltage रो कम amount रो voltage देबी let us say 200 volt or 120 volt or 150 volt then definitely तार पावर टा reduce हे जिवो किंतु रेजिस्टेंस टा केबे चेंज होबनी काहे कि ना रेजिस्टेंस टा कहा पर डिपेंड करे ऑन द डिवाइस ठीक अछि डिवाइस टा जो थियरी हेची से मटेरियल ऊपर डिपेंड करे रेजिस्टेंस तो मु त केते वोल्ट दउची ता ऊपर डिपेंड करबा नहीं रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड सो रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द
power rating data. For example, jodi if I calculate the resistance of this device whose power is 20 watt and the operating voltage is 240 volt, then resistance kete asibo R equal to how much? V square by P, ta mane 240 square by 20. मु जहाँ भी वैल्यू पाइबी, if I supply 200 volt or 120 volt or 150 volt to the device, resistance केबे चेंज होबनी, किंतु कोन चेंज होबो तार पावर टा चेंज हो जिवो. इज दैट क्लियर? जदि मु ताकू इंडिकेटेड वोल्टेज देबी माने 240 volt सप्लाई करबी, देन इट विल कंज्यूम द एक्चुअल पावर जो होची 20 watt. बट जदि ताकू मु कोन करबी किछि अलगा वोल्टेज देबी, ता माने व्हेन द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, then the power consumed also decreases or also reduces. ता माने जदि ताकू मु V volt माने 240 volt न देकी V dash volt देबी, V dash may be 200 volt, it may be 120 volt, it may be 150 volt. जदि ताकू मु V dash volt देबी, then तार पावर टा 20 watt हबो नाही, केते हबो? V dash हबो केते? V dash square by R. Is that clear? So हमें ए कॉन्सेप्ट ऊपर बहुत किछि क्वेश्चंस करिबा, देन यू विल बी मोर क्लियर. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी रो फार्मूला कोन ना? पावर इनटू टाइम. जदि पावर गिवन अछि और टाइम गिवन अछि, देन सिंपली मल्टीप्लाई पावर विथ टाइम, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, किंतु मन रखिता जे पावर रो एसआई यूनिट कोन? वाट, और टाइम रो एसआई यूनिट कोन? सेकंड. सो वाट इनटू सेकंड will be the SI unit of electric energy, and watt into second is nothing but joule. Is that clear? So SI unit of electric energy is joule. किंतु हम जानि जे हम घरे जो मीटर बसिछि, the electric meter measures the amount of electric energy consumed by the appliances in our home in 1 month. ठीक अछि, तुम जानथिबो तम घर को प्रति मास रे इलेक्ट्रिक बिल आसे. से इलेक्ट्रिक बिल रो मीनिंग कोन ना? आम घर जो इलेक्ट्रिक मीटर अछि, दैट इलेक्ट्रिक मीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस. आम घरे फैन अछि, टीवी अछि, फ्रिज अछि, देन वॉशिंग मशीन अछि, इलेक्ट्रिक बल्ब अछि. सो वी हैव मेनी अप्लायंसेस इन आवर होम. ठीक अछि, एंड ऑल दोस अप्लायंसेस दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे कंज्यूम सम एनर्जी. ता माने इलेक्ट्रिक मीटर काम कोन? से मेजर करिवो जे केते अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम होची, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट आवर इलेक्ट्रिक बिल. तो ताको हमें कहिबा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक अछि, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, किंतु हमें जो कहूचे जे इलेक्ट्रिक बिल आसीची 40 यूनिट्स बा 50 यूनिट्स, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे पर यूनिट हमको 5 टका दबाक पड़िबो बा 4 टका दबाक पड़िबो. तो से यूनिट रो माने कोन? आमे केते अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम कले हमर मीटर रे 1 यूनिट रीडिंग शो करिवो, ताको हमें कहिबा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज आल्सो नोन एज किलोवाट आवर. ता माने 1 किलोवाट आवर मीनिंग कोन? जदि गोटे अप्लायंस रो पावर होची 1 किलोवाट बा 1000 वाट, एंड इफ दैट अप्लायंस runs or operates for 1 hour, जदि गोटे 1 किलोवाट बा 1000 वाट रो डिवाइस गोटे घंटा बा 3600 सेकेंड पर्यंत माने रन करे, तो से जेति की एनर्जी कंज्यूम करिवो, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 किलोवाट आवर. इज दैट क्लियर? सो 1 किलोवाट आवर को जदि मु एक्सप्रेस करबी इन टर्म्स ऑफ जूल, आंसर केते आसीबो? 3.6 into 10 to the power 6 जूल. ता माने जदि the electric appliances in our home consumes this amount of energy, then एतिकी एनर्जी कंज्यूम करिवे, then मीटर रे गोटे यूनिट रो रीडिंग आसीबो. इज दैट क्लियर? ताको में कहूचे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. So students, these are some of the important formulas from this topic. Now let us go to solve few numericals from the concept of heating effect of electric current and the electric power. So let's get started. So now look at the first question. The question is, an electric heater has a rating of 750 watt and 220 volt. तमने इटा होची power रा value, इटा होची voltage रा value. You have to calculate what is the current passing through it and the resistance of the heater. So students, from the power rating data,
पावर केते कहिची पावर कहिची 750 वाट इज दैट क्लियर एंड वोल्टेज केते कहिची 220 वोल्ट सो वी हैव टू कैलकुलेट two things the first one is what is the current passing through it ta mane electric heater re kete amount of current pass karuchi so you have you know the formula kon to calculate the current I we can use the formula P by V power rating ro jaha power kahithibo jaha voltage kahithibo put those values here I kete hejibo I hejibo P by V P kete P hochi 750 watt divided by V kete 220 volt so 750 by 220 will be the current and the answer will be 3.4 ampere 3.4 ampere you are finding electric current so the unit will be ampere always remember to write the unit जदि तुम यूनिट लिखा को भूली जीवो then definitely half mark will be deducted then the second bit is to calculate the resistance means resistance of the इलेक्ट्रिक हीटर तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पे फार्मूला कौन R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P इज दैट क्लियर R केते हेजबो R हेजबो V स्क्वायर बाय P व्हाट इज V V इज 220 वोल्ट सो V स्क्वायर मींस 220 into 220 बाय पावर केते पावर होची 750 वाट so the answer will be if you calculate the answer will be 64.7 you are finding resistance so the unit will be ohm ta mane se electric heater ra resistance kete asibo 64.7 ohm so in this way you can solve this question again jehetu electric heater ra power likha ichi 750 watt and 220 volt this is the power rating तार मीनिंग कौन जदि मु से इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट रो वोल्टेज सप्लाई करिबी देन ओनली तार पावर केते आसीबो 750 वाट आसीबो ता माने द इलेक्ट्रिक हीटर विल कंज्यूम 750 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड इज दैट क्लियर किंतु जदि मु से इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट सप्लाई न करके ताके मु 100 वोल्ट बा 150 वोल्ट सप्लाई करबी देन तार पावर केबे भी 750 वाट हबो नाही इज दैट क्लियर सो पावर रेटिंग रा मीनिंग कोन जदि मु से डिवाइस को इंडिकेटेड बा मार्क्ड वोल्टेज सप्लाई करबी then only it will give you the marked or indicated power okay so now let's move to the next question now look at the second question the question is an electric bulb has power rating 40 watt to 20 volt what will be its power if it is connected to a 110 volt source so बारंबार मु कहि आसुची जे पावर रेटिंग रा मीनिंग कोन you can see that this electric bulb has power rating 40 watt to 20 volt ता माने गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रो पावर रेटिंग केते लिखा हिची 40 वाट कमा 220 वोल्ट तार मीनिंग कोन जदि मु से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई करबी देन तार पावर केते आसीबो 40 वाट आसीबो ता माने से प्रत्येक सेकेंड रे 40 जूल अमाउंट रे एनर्जी कंज्यूम करिवो इज दैट क्लियर किंतु जदि मु से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई न करिकी 110 वोल्ट सप्लाई करिवि देन तार पावर केते आसीबो बा से 1 सेकेंड रे केते अमाउंट रे एनर्जी कंज्यूम करिवो सो स्टूडेंट्स तमको म कहितली आमे जेतेले कोनसे डिवाइस किनि थाउ इलेक्ट्रिक डिवाइस तार रेजिस्टेंस ता फिक्स थाए इज दैट क्लियर सो आमे जो इलेक्ट्रिक बल्ब किनिचो ए इलेक्ट्रिक बल्ब रो गोटे कांस्टेंट रेजिस्टेंस अछि इज दैट क्लियर तो आमे से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट दबा 220 वोल्ट देले जहां बो रेजिस्टेंस इफ वी सप्लाई 110 वोल्ट 150 वोल्ट 180 वोल्ट आमे से इलेक्ट्रिक बल्ब को जदी डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई करिबा देन इट्स रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ठीक अछि पावर टा चेंज होबो बट रेजिस्टेंस सेम रहिबो बिकॉज़ रेजिस्टेंस डिपेंड करियो कहा परे ऑन द मटेरियल यूज्ड इन द बल्ब और इन द डिवाइस जेहेतु मटेरियल चेंज होनी त माने से गिवन इलेक्ट्रिक बल्ब रो रेजिस्टेंस टा फिक्स रहिबो त हम जानि छै कोन पावर रो फार्मूला कोन पावर रो फार्मूला होची v²/r इज दैट क्लियर पावर केते ना v²/r जेहेतु से डिवाइस रो रेजिस्टेंस सा कांस्टेंट अछि त माने दिस r इज फिक्स्ड त मबे कहि परिबी जे p is directly proportional to v square p is directly proportional to v square त माने जदी मु
voltage को कमी देबी if I reduce the voltage then power भी कौन हबो reduce हो जिवो is that clear okay तबे देखो वर्तमान कौन हबो ना P1 केते हबो जदि मु से इलेक्ट्रिक बल्ब को V1 वोल्टेज सप्लाई करबी सपोज द पावर विल बी P1 सो P1 को लिखि परिबी V1 स्क्वायर बाय R सेमिति जदि मु से बल्ब को V2 वोल्टेज सप्लाई करबी देन पावर केते आसीबो P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय R एठी मु R1 R2 मेंशन करूनी बिकॉज़ द रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड मु वोल्टेज चेंज कले रेजिस्टेंस चेंज हबो नाही बट पावर चेंज हो जिवो ठीक अछि सो P1 केतेला V1 स्क्वायर बाय R P2 केते आसीबो V2 स्क्वायर बाय R तो वर्तमान मो P1 बाय P2 जदि मो रेशियो नेबी ता केते हबो V1 स्क्वायर बाय R डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर बाय R इज दैट क्लियर देन R कैंसिल हो जिवो यू विल गेट V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर बाकी मैं लिखि परिबी V1 बाय V2 रो होल स्क्वायर सो P1 बाय P2 केते हला V1 बाय V2 रो होल स्क्वायर सो देखो एठी जो पावर रेटिंग देइची जदि 220 वोल्ट सप्लाई करिबा देन पावर केते आसीबो 40 वाट आसीबो ता माने एटा होची V1 एटा होची P1 व्हाट इज द क्वेश्चन जदि हमें 110 वोल्ट सप्लाई करिबा देन पावर केते आसीबो ता माने voltage V2 होची 110 volt and we have to calculate what is the power is it clear okay तबे देखो P1 by P2 equal to V1 by V2 रो whole square so P1 केते P1 होची 40 watt so write 40 here divided by P2 we have to calculate P2 is equal to V1 by V2 रो whole square V1 केते V1 होची 220 by V2 केते V2 होची 110 so 220 by 110 then तारो हमें स्क्वायर नै जिबा so 220 by 110 will be 2 so 2 रो स्क्वायर केते हे जिवो 4 हे जिवो so 40 by P2 equal to 4 that implies P2 केते हे जिवो 40 by 4 equal to 10 watt is that clear ता माने जदि हमें से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई न देकी 110 वोल्ट सप्लाई दबा देन तार पावर टा 40 वाट न हे की केते हबो 10 वाट हबो ता माने द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल रिड्यूस इज दैट क्लियर तो मन रखिता बारंबार मैं पॉइंट कहूची जे पावर रेटिंग रा मीनिंग कोन ना से कवर रे जेति की वोल्ट जेति की वाट लिखाई थिबो तार मीनिंग कोन तार मीनिंग होची जदि मो से डिवाइस को सेति के अमाउंट रो वोल्टेज सप्लाई करिवि देन ओनली द डिवाइस विल गिव यू द इंडिकेटेड पावर लाइक जदि मो से बल्ब को 220 वोल्ट वोल्टेज देबी देन इट विल गिव यू 40 वाट ऑफ पावर किंतु आमे कोन देखले जदि हमें से इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई न करे कि 110 वोल्ट सप्लाई करिबा देन कोन होची तार पावर टा कमी जाउची and the power becomes 10 watt is that clear so in this way you can solve this question and now let's move to the next question so look at the third question the question is two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel across the same potential difference or across the same voltage find the ratio of heat produced in series and parallel combination so let me explain the question to you we have two conducting wires ठीक है हम पाखे दीटा conducting wire अछि of the same material suppose copper and copper ठीक है we have two wires both are made from copper and they have equal length and equal diameter ठीक है so equal diameter meaning कौन they have same area cross section ठीक है त माने हम पाखे जो दीटा वायर अछि से मानकर मटेरियल सेम माने रेजिस्टिविटी सेम दे हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर मींस दे हैव इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन सो हमें जानि छै जे रेजिस्टेंस रा फार्मूला कोन R इक्वल टू रो L बाय A रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया तो जेहेतु दीटा कंडक्टर बा दीटा वायर रा मटेरियल सेम माने रेजिस्टिविटी सेम लेंथ सेम और एरिया सेम इट मींस the two wires have the same resistance is that clear so we have the two wires and they have the same resistance R or R okay they're identical
conductors. So these two wires are first connected in series and then in parallel across the same potential difference. First आमे कौन करिबा ए दुटा वायर को कनेक्ट करिबा in series. Okay, so these two wires are connected in series across a potential difference. Suppose गोटे बैटरी अच्छी से बैटरी रो वोल्टेज केते ना V volt. Okay, so these two conductors are connected in series across this potential difference. Then I will connect them in parallel. First they are connected in series and then they are connected in parallel. So second case में कौन करिबा the two wires are connected in parallel across the same potential difference. माने हमें बैटरी चेंज करिबानी, बैटरी सेम रहिबो, only I will change the arrangement of the resistors. First they are connected in series and now they will be connected in parallel. Voltage से सेम आसीबो V volt, ठीक अछि, R and R. So हमें जानि छै जेतेबे करंट फ्लो होबो गोटे रेजिस्टर रे डेफिनेटली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होबो. So in the first case some amount of heat energy will be produced, in the second case also some amount of heat energy will be produced. The question is, what is the ratio? We have to find the ratio of heat produced in series and parallel combination. तमाने suppose series combination रे HS amount रो heat energy produce होबो and parallel रे HP amount रो heat produce होबो. We have to calculate the ratio of HS to HP. Okay, HS by HP में calculate करिबा. So students, heat energy पाई formula कौन अछि हमें जानि छे H equal to I square RT हे परिबो किंबा हमें लिखि परिबा V square by R into T किंबा हमें लिखि परिबा VIT. Okay, so the question is we have three formulas. Okay, we have three formulas किंतु हमें को formula एठी यूज करिबा so that you can easily calculate the okay heat energy. तो देखो एठी, if the two resistors are connected in series then a circuit ro total resistance by equivalent resistance केते हे जिवो 2R हे जिवो. ओके, ता माने सीरीज कनेक्शन रे हमको जाना अछि जे सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस केते. Similarly, if the two resistors are connected in parallel तो ए केस रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट रो केते हे जिवो R by 2 हे जिवो. तो फर्स्ट केस रे equivalent resistance केते 2R. in the second case the equivalent resistance is R by 2 and आम पाखरे voltage रो वैल्यू दिया हेछि V और V दिया हेछि and same time T पई current flow होछि in both the cases. त माने voltage रो वैल्यू जणा अछि, resistance जणा अछि, time भी हमको जणा अछि. So we have to use, we can use this formula. ठीक अछि, आमे चाहिले I square RT भी यूज करि परिबा, but जेहेतु हम पाखरे डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा अछि, voltage given, resistance given, then we can use this formula. Okay, so देखो एठी सीरीज कॉम्बिनेशन केस रे केते अमाउंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होबो ना V स्क्वायर बाय R. R माने कोन, R माने होची टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो एठी we have two resistors in series ता माने टोटल रेजिस्टेंस केते अछि 2R अछि. जदि रेजिस्टेंस थिबो R देन हमें V स्क्वायर बाय R पुट करिबा, किंतु ए केस रे टोटल रेजिस्टेंस केते अछि 2R अछि. So I will put V square by 2R here into time केते T. This is HS. Similarly HP केते आसीबो, again voltage केते V अछि, so V square by what is resistance of this circuit R by 2. In the first case the resistance was 2R and that's why I have written 2R here. In the second case the resistance of the circuit is R by 2. So let me write R by 2 here. R by 2 into time T. Is that clear? So these two will go to the numerator, it becomes 2V square by R into T. So HS रा value केते हला V square by 2R into T. HP रा value केते आसिला 2V square by R into T. Now let us find the ratio HS by HP. HS by HP रा value केते आसीबो, what is HS? V square by 2R into T by HP माने कोन, you can give a multiply symbol
and then take the reciprocal of this one. So that is r by 2v square into t. So t cancels, v square cancels, r cancels. Answer kete asibo 1 by 2 into 2 4. Ta mane series combination case re कम अमाउंट हीट प्रोड्यूस हम, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन गोटे अधिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस हम. यू कैन से दैट द रेशियो इज HS by HP equal to 1 by 4. Okay, so in this way you can solve this question. And now we'll proceed to the next one. So look at the question number 4. The question is two lamps, one rated 40 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to the electric supply of 220 volt. So first we have to draw a circuit diagram to show the connection. Then we have to calculate what is the total current flowing in the circuit, and next one is calculate the total energy consumed when they operate for 1 hour. So question कौन देछि हम पाखरे दुईटा लैंप अछि and the power rating are given 40 watt 220 volt and 60 watt 220 volt, and they are connected in parallel to the electric supply of 220 volt. So first we have to draw the circuit diagram. So let us draw the circuit diagram first. So electric bulb ro symbol हमको जाना अछि, and we have two bulbs and they are connected in parallel. So this is the first bulb and this is the second bulb. Okay, so these two bulbs are connected in parallel to a electric supply of 220 volt. Suppose it is a battery अच्छी 220 volt रो battery अच्छी. This is the key and now this key is closed. Okay, 220 volt रो supply देइछि. So bulb 1 रो first bulb or first lamp रो केतेला power rating 40 watt 220 volt और second bulb रो केतेला power rating 60 watt 220 volt. So this is the circuit diagram. Now we'll go to the second bit. कौन पचारछि calculate the total current drawn. केते amount रो current draw करूछि. So देखो ये हमें जाने चाहिए जे in parallel connection the same voltage develops or appears across all the devices or across all the components. Since the two bulbs are connected in parallel and the voltage is 220 volt, the supply voltage is 220 volt. ता माने both जो lamp अछंती, both the lamps have the same potential difference, that is 220 volt. ता माने bulb 1 रे बा lamp 1 रो across रे 220 volt रो voltage अछि and second lamp रो across रे मध्य 220 volt रो voltage अछि. Is that clear? So हमें first बाहर करिबा जे केते amount रो current flow होउची through the first lamp और केते amount रो current flow होउची through the second lamp. ठीक अछि. So I1 and I2 calculate करिबा परे if we add them we will get the total current drawn from the source or the total current in the circuit. So I1 हमें केमिति calculate करिबा, the formula is P1 by V1. ठीक अछि. So first electric जो bulb अछि बा lamp अछि तार power केते, power is 40 watt and what is the voltage across it, the voltage is 220 volt. Okay, so 0 cancel hejibo, 4 by 22 that will be equal to 2 by 11. So 2 by 11 ampere amount ro current flow hochi through the first lamp. Similarly second lamp रे केते current flow करिवो, I2 केते आसीबो P2 by V2. Okay, P2 by V2. P2 केते, P2 होची 60 watt divided by V2 केते same 220 volt. So 0 cancel, 6 by 22 एटा हेजिवो केते 3 by 11 ampere. Is that clear? ता माने first lamp रे 2 by 11 ampere amount रो current flow होची and second lamp रे 3 by 11 ampere amount रो current flow होची. So what is the total current? Total current in the circuit केते आसीबो, I equal to I1 plus I2. I equal to I1 plus I2. I1 केते 2 by 11 ampere plus I2 केते 3 by 11 ampere. Now you can take 11 as LCM and you will get 2 plus 3 here. So finally you will get how much? You will get 5 by 11 ampere. ता माने
total circuit रे 5/11 ampere amount ro current flow होची. Is that clear? So second bit is now completed. Now we'll go to the third bit. कौन देची? Calculate the total energy consumed when they operate for 1 hour. ठीक है जी? जदि the two lamps will operate for 1 hour, then what will be the total energy consumed? So 2/11 ampere amount of current is flowing through the first lamp, and 3/11 ampere amount of current is flowing through the second lamp. And now we have to calculate what is the total power if they operate for 1 hour. ठीक है? So electric power रो बहुत गुडे फॉर्मूला अच्छी, तो आम को फॉर्मूला यूज करिबा? Actually we have to calculate energy, not power. Sorry, we have to calculate energy. So energy रो फॉर्मूला कौन? E हला energy. So energy रो फॉर्मूला कौन? Power into time. बाबू लिखि परिबी VIT लिखि परिबी VIT. V कौन? V होची टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट. I कौन? I होची टोटल करंट ऑफ द सर्किट. T कौन? T होची टाइम. सो ए सर्किट रो टोटल वोल्टेज केते? 220 वोल्ट. आमे जो सोर्स देइचे से सोर्स रो वैल्यू केते? 220 वोल्ट. सो इन प्लेस ऑफ V मु लिखि परबी 220 वोल्ट लिखि परबी इनटू I कौन? सर्किट रो टोटल करंट. तो सर्किट रो टोटल करंट कोटा I equal to I1 plus I2, which is equal to 5/11, and 2/11 plus 3/11 will be 5/11. 5/11 ampere into T केते कोइची 1 hour, and we have to convert this into second because the SI unit of time is second, not hour. So 1 hour equal to 3600 second. Is that clear? So if you solve them, you'll get how much? 11 late akate eta hijibo 20 hijibo. So 20 into 5 is 100. 100 into 3600 dekate hijibo 36 रे 4टा 0 hijibo. Okay, 4 zeros and the unit will be joule. ठीक अछि? त माने एते की amount रो energy consume होबो in 1 hour. Is that clear? Otherwise, if you want to calculate the energy in some other way, केमते में करि परिबा? देखो वर्तमान आमे इंडिविजुअल बाहर करि परिबा. The energy consumed by this bulb, energy consumed by this bulb, and then add them. You will get the same answer. ठीक अछि? तो either तमे total voltage into total current into total time नहीं जाओ, किंबा individual lamp पई energy calculate करके add them. Okay, ताको add कर दबो, you will get the same answer. ठीक अछि? But this one is easier. So in this way you can solve this question. And now we'll proceed to the next. So look at the question number 5. The question is current I flowing through a resistor results in dissipation of power P. By what percentage will the power dissipated in the resistor increase if the current in the resistor is increased by 50%? So let me explain the question to you. सी कौन कहला हम पाखरे गोटे रेजिस्टर अच्छी. सपोज द रेजिस्टेंस इज कैपिटल R. ओके, सो जदि ए रेजिस्टर रे I अमाउंट रो करंट फ्लो हबो, देन द पावर डिसिपेशन इज P. त माने केते अमाउंट रो पावर हमें कंज्यूम करिबा ना P. सो P रो वैल्यू केते हिजबो? हम जानते जदि करंट रो वैल्यू गिवन अछि एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन, देन पावर केते हबो? P इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है? So this is the power consumed. What is the question? By what percentage will the power dissipated in the resistor increase if the current in the resistor is increased by 50%? जदि में कौन करिबा ना से सेम रेजिस्टर रे करंट को इंक्रीज कर देबा. केते अमाउंट इंक्रीज करिबा? by 50%. ठीक है? जदि करंट 50% इंक्रीज करिबो, then power dissipation केते परसेंट इंक्रीज करिबो? We have to calculate that. So let us do the calculation. त माने इनिशियली I अमाउंट रो करंट फ्लो होतला, एबे कोन हबो? करंट हमें इंक्रीज करेबा. केते अमाउंट इंक्रीज करेबा? द करंट इज इंक्रीज्ड बाय 50%. त माने 50% ऑफ I. सो I वाज द इनिशियल करंट. हमें केते एक्स्ट्रा ऐड करिबा ना से करंट रो 50%.
ता माने I इंटू 50/100 ठीक अच्छे एतिकी आमे एक्स्ट्रा करंट ऐड करिबा बा एतिकी अमाउंट रे आमे कोन करंट को इंक्रीज करिबा 50% रे मीनिंग कोन 50/100 बाको मु लिखि परिबी 1/2 ओके ता माने न्यू करंट केते हबो आइडियास केते हिजबो I प्लस I/2 I+I/2 बाटा केते हिजबो एटा हिजबो 3I/2 हिजबो ठीक अछि रेजिस्टेंस सेम अछि किंतु मु कोन कली ओनली करंट को इंक्रीज करेली सो इनिशियली द करंट वाज I द पावर वाज I²। वर्तमान करंट केते गेला आइडियास केते ला 3I/2 गेला तो एबे न्यू पावर केते हिजबो P डैश will be I² into R and what is I डैश होची 3I/2 so it will be 3I/2 तार स्क्वायर into R एटा केते हिजबो एटा हिजबो 9I² R/4 ठीक अछि so P डैश केते हिजबो 9/4 I² R so this is the initial power this is the initial power this is the final power तो हमें देखिबा एठी केते परसेंटेज पावर इंक्रीज हेची सो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर रा फार्मूला कोन ना इंक्रीज इन पावर डिवाइड बाय इनिशियल पावर into 100 increase in power divided by initial power into 100 so increase in power माने कौन तार मीनिंग कौन फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर माने P डैश माइनस P डिवाइड बाय इनिशियल पावर कौन P into 100 ओके सो P डैश केते अछि 9/4 I² R so let me write 9/4 I² R माइनस P केते P होची I² R ओके P केते I² R डिवाइड बाय P केते I² R into 100 ओके सो यू कैन टेक I² R कॉमन एटा केते हिजबो 9/4 minus 1 into I² R by I² R into 100 so I² R cancels हम बेटे केते पाइबा so 9/4 minus 1 माने एटा केते हिजबो 9 minus 4/4 into 100 so एटा केते एटा हिजबो 5/4 into 100 so 100/4 will be 25 so 25 into 5 will be 125% is that clear ता माने जदी करंट 50% increase हबो then the power dissipation will increase by how much 125%. Is that clear? So in this way you can solve this question. So students, that's all for today's class. In the next class I will come with some more questions. So if you have understood all these questions, all the solutions, then please hit the like button, and if you are new to my channel then please subscribe to it. Again we'll meet in the next class. Till then, bye bye.